Hi everyone, I'm Nimrit Kaur Ahluwalia. Please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel. Hi Nimrit, how are you? I'm alive. How are you? I'm good. Hi, I'm Madhur. I'm from Siddharth Kannan's team. Nimrit, आपने ticket to finale जीता, right? And then within like एक week ही बचा है. Correct. And you're out. What is your feeling right now? How are you feeling right now? Is it disappointment? Is it regret? कि शायद कुछ अलग कर लेती तो शायद maybe I wouldn't have been out. Look at my face. Do you think I have any regret? No. There are no regrets at all because मैं एक्चुअली अपनी जर्नी को लेकर बहुत प्राउड हूँ बिकॉज आई फील कि जब आप इतने कैमरास के साथ सराउंडेड होते हो और आपके पास कॉन्स्टेंटली इतना प्रेशर होता है यू नो ऑब्वियसली इट्स सपोज टू बी अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड देयर इज ऑब्वियसली सपोज टू बी कंटेंट बट आई थिंक मेरा शो को देखने का नज़रिया बहुत लोगों से काफ़ी अलग था. It was just about throwing my real side out. And the fact that the Nimrit who went in is still the Nimrit who came out has only grown, but the core hasn't changed. That's very important. So, yeah. So Siddharth had spoken to Tina when she was out 2 weeks ago. Yeah. तब उन्होंने कहा था कि आपको चीज़ें हमेशा प्लेटर में मिली हैं, जैसे टिकट टू फिनाले, कैप्टेंसी. What are your views about Tina? See, honestly, I feel कि हम सब ने इस घर में एक दूसरे की इतनी बैंड बजाई है कि I mean, I don't want to say anything bad. I mean, everybody has their own opinion, and if she does have that opinion, and if she did feel कि मुझे चीज़ें प्लेटर पे मिली है, then that's her opinion. मुझे पता है मुझे चीज़ें प्लेटर पे नहीं मिली है और किसको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे. And it's just amazing how she is the one to say this. But on a very serious note, I think after 4.5 months, yeah, bro, like yeah, everybody is entitled to their own opinion, and that's okay. But इस वीक के टास्क में अर्चना also said the same thing कि you know निमृत का योगदान is like पुतले की तरह खड़े रहो. तो when people say these things and netizens ने भी बहुत बार ये बोला है कि you are non deserving in the show. तो ऐसे लोगों से आप क्या बोलना चाहोगे कि why do you think I am non deserving? Honestly, I don't care if they think I'm not deserving. I really don't. I really don't, and I'm not saying this with arrogance. I swear. मैं बहुत दिल से कह रही हूँ ये चीज़ क्योंकि किसी को भी साइडलाइंस पे बैठ के जज करना बहुत आसान होता है. इट्स द ईजिएस्ट थिंग टू डू. इट्स द ईजिएस्ट थिंग टू पुल समवन डाउन. इट्स द ईजिएस्ट थिंग टू डिस्क्रेडिट समवन. इट्स द ईजिएस्ट थिंग टू थ्रो मक and question someone's credibility, and I think I've had so much of it in the last 4.5 months that I respect their opinion. If they feel that, then that's their opinion, and I respect their opinion. Good for them. So that is probably the biggest learning जो आपको मिली है from the Big Boss house. Of course, you can't fight the world and constantly be like कि नहीं ऐसा नहीं और मैं ऐसी नहीं हूँ. मैं कैसी हूँ वो पिछले 4.5 महीनों में दिख चुका है. Right. You know, I can't do more than this. This is the max. I mean, you guys have seen me brush my teeth, be at my worst situation. Right. इससे ज़्यादा vulnerable और कोई इंसान कैसे हो सकता है. And मुझे पता है कि मेरे लिए personally ये journey, I mean, when I think of it, I feel very happy क्योंकि मुझे एक real इंसान दिखता है. Right. जिसने अच्छे phases देखे, you know, it's been like an entire graph. Right. Like the waves, the ocean waves. Yeah. That's life. And मेरे लिए रियलिटी शो एक लाइफ की तरह ही मैंने बिग बॉस सीजन को लिया. I really like this word vulnerable जो आपने कहा. इस बार जो इस हफ्ते का जो एक टास्क था जहाँ पे आपके ऊपर डिटर्जेंट फेंका गया था, आपके ऊपर हल्दी फेंकी गई थी, एंड शायद गलती से शालीन जब वो बकेट से आपके ऊपर पानी डाल रहे थे ताकि वो हल्दी और सबका दाग निकल जाए. I love how you're defending Charlene on that. शायद गलती. Love it. तो वो बकेट आपके हेड पे भी लग गया था. Was Nimrit the most vulnerable at that point of time? No. What was your most vulnerable moment in this 4.5 months?
I think the most vulnerable was when I was in the confession room. Would you want to talk about that? And I've already spoken about it. And I begged them also कि please Big Boss ये बाहर नहीं जाना चाहिए, please हम सिर्फ आपस में बात कर सकते हैं. But yeah, that was the most vulnerable part. And when your father came inside the house, Yeah. तब थोड़ी कहा सुनी जैसी हो गई थी आपके और आपके फादर के बीच में. आपकी भी होती होगी पापा के साथ. हाँ, बट ये तो पब्लिकली ऐसे. But that's the point. आप कहते हो कि आपको रियलिटी शो चाहिए, आपको रियल साइड चाहिए. जब इंसान के रियल इमोशंस निकलते हैं तो बोलते हो ये कैसे बिहेव किया, जबकि आप लोग खुद अपने घर पे बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ ऐसी बात करते हो कभी कभार. बिकॉज फैमिली मेम्बर्स कैन डिसएग्री विद ईच अदर. मेरे लिए मेरे पर्सपेक्टिव से मैं अपने डैड को 100 दिन की जर्नी के बाद मिल रही हूँ, और वो इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनके सामने मैं 10 साल की बच्ची बन के टैंट्रम थ्रो कर सकती हूँ, और जो मेरे टैंट्रम झेलेंगे भी, क्योंकि वो मेरे डैड है. क्योंकि मैं दुनिया के सामने नहीं बोल सकती कि ओ प्लीज़ हेल्प मी, सेव मी. बट आई कैन डू दैट इन फ्रंट ऑफ हिम. ही इज़ माई फादर. आई हैव एवरी राइट टू बिहेव लाइक दैट, एंड ही हैज़ एवरी राइट टू बिहेव द वे ही वॉन्ट्स टू विद मी, बिकॉज आई एम हिज डॉटर. सो हाउ इज़ दैट रॉन्ग? Nice. You were a part of this really amazing group, Mandali. फैमिली. Yes, but साजिद ने कहा कि उनके हिसाब से मंडली में सिर्फ 4 लोग हैं और 6 नहीं. तो जैसे अब्दू, शिव, साजिद और स्टैन. आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनके हिसाब से आप और सुम्बुल इस मंडली का हिस्सा क्यों नहीं हो? सी आई डोंट नो उन्होंने क्या कहा है बाहर आके, आई हैव नो क्लू. बट मुझे इतना पता है कि जब मुझे अपने 500 दोस्तों की ज़रूरत थी तब वो 500 के 500 मेरे साथ खड़े हुए थे. यू नो व्हेन आई हैड एन एपिसोड विद शालीन जहाँ उन्होंने मुझे मेंटल प्रॉब्लम्स को बोल के प्रोवोक किया था, इट वाज साजिद सर हु वाज देयर टू सपोर्ट मी. जब घर में मैं किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती थी तब मेरे पास अब्दू था जिसके साथ मैं जेन्युइन कॉन्वर्सेशन कर सकती थी. मुझे जब हक करने की अपने भाई की याद आती थी तो मेरे पास सुम्बुल थी, बिकॉज शी वाज लाइक माई यंगर सिस्टर. स्टैन वाज लाइक माई यंगर ब्रदर. एंड शिव जिसके साथ मैं यू नो मे बी बिकॉज वी आर द सेम एज ग्रुप, तो एक रिलेटेबिलिटी थी. तो उसके साथ जब मेरे को मन हल्का करना होता तो ऑल 5 ऑफ देम हैव बीन देयर फॉर मी. सो आई डोंट नो what anyone has said. What are your real feelings for Abdu? I love the boy. He is a भगवान का फरिश्ता. दिल से बोल रही हूँ. I mean, I feel so protective for him. You know, I love him. He's the most purest soul इस पूरे घर में. Okay. Finally, last segment सिडकी का अंगार. इसमें एकदम फायरी questions होते हैं. Okay. Are Ankit and Priyanka in love? Ask them. What do you think? I don't care. I really don't. Who's the winner of, according to you, who's the winner of Big Boss 16? Who will be or who is? Will. आपके हिसाब से ये बंदा तो या बंदी तो जीत ही गई है शो. ये शो सब लोग जीत चुके हैं. पर फिर भी एक नाम No, ले रहा हूँ genuinely तो I'm saying this. ये शो तो सभी जीत चुके हैं. इतना बड़ा सीजन हिट हो गया. अब्दू को इतना प्यार मिला, सबको. मतलब ऐसा कौन है इस घर में जिसको प्यार नहीं मिला? सब प्यार कमाने आए थे, सबको प्यार मिला. जीत तो सभी गए. ट्रॉफी एक ही किस्मत में, वो हम देखेंगे कि फिनाले पे किसको मिलती है. मुझे भी नहीं पता. And the misfit in the house. Me. You? Yeah. Why would you say that? Because sometimes I cannot tolerate how should I say it? एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर जो और लोगों का आपस में था, शायद मेरा वो थोड़ा सा कम था. मिसफिट इन अ पॉजिटिव वे आई वुड से. मिसफिट डजंट नेसेसरली हैव टू बी इन अ नेगेटिव लाइट, यू नो. क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी ने भी अपना पर्पस अचीव नहीं करा. सब लोग, पूरी पिक्चर अगर देखने को जाओ तो हर कैरेक्टर ने अपना काम किया. And finally, the one contestant जो शायद हाउस में होना ही नहीं चाहिए. और I do not say that for anyone, genuinely. एक अर्चना की भी ज़रूरत है. आप समझ रहे हो? एक गौतम की भी ज़रूरत है, एक सौंदर्या की भी ज़रूरत है. सारे कंटेस्टेंट्स की ज़रूरत है, तभी तो पिक्चर में मज़ा आया है. Nice. सिर्फ मंडली होती क्या करते तुम लोग? जोक्स सुन के बोर हो जाते, Right. है ना? और सिर्फ अर्चना होती तो बोलते कि एक पॉइंट की और बहुत इरिटेट कर रही है. सो देयर इज़ अ राइट ब्लेंड ऑफ एवरीवन. सो द वे द मेकर्स हैव ब्रॉट दिस ensemble, hats off to them. On this note, thank you so much, Thank you. Nimrit.